Hello and cheers. I am Rajiv Mittal, life coach and trainer. Welcome to this episode of Change Your Mind to Change Your Life for the Better. It's been almost a month since the new year started, and I'm sure a lot of you must have made some new year resolutions or set some goals for yourself for this year. And I'm also reasonably sure that quite a few of you must be on track to achieve your goals or following the resolution that you have made. But with my experience, I can say that there is another set of people who may have already forgotten their New Year resolution or may be struggling to be on track to fulfill the goals that they had set for themselves. For the second set of people, I am going to today give you 6 tips which will help you to be on track and achieve your goals that they actually wanted to achieve. First of all, have a very limited number of resolutions or goals for yourself. Not more than 2, preferably 1. Why? Because when the number is large, तो क्या होता है कि you get overwhelmed. बहुत प्रेशर आता है कि इतनी सारे चीज़ें करनी हैं और प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते आप, और एज अ रिजल्ट उसमें से कुछ भी नहीं हो पाता. सो लिमिट द नंबर टू, एज आई सेड, 1 or 2. Second, identify the purpose as to why you are doing it. What is the real reason? Something which is close to your heart, which is very, very emotionally close to you. Let me take an example. आप में से काफ़ी लोगों ने शायद एक गोल रखा होगा कि इस साल हम अपना वेट घटाएंगे. अब सवाल ये है कि कोई वेट आपका एक दिन तो बढ़ा नहीं था, इतने दिनों से बढ़ा हुआ था, और आपने कई हफ्ते पहले भी सोचा होगा, लेकिन उसके बारे में कुछ ज़्यादा करा नहीं. अब क्या हो जाएगा चेंज? आप सवाल यह है कि क्यों करना चाहते हैं. आप कहेंगे यस, वेट घटाऊंगा मैं तो हेल्थ के लिए अच्छा है. बट उससे ज़्यादा ज़रूरी और क्या हो सकता है जिससे वेट घटाने का फ़ायदा आपको? यस, इफ़ यू आर हेल्दी, then only you can ensure the happiness of your family, your children for example. क्योंकि अगर आपकी हेल्थ सही नहीं रहेगी तो उनका भी जो फ्यूचर है कुछ बहुत बढ़िया नहीं होगा. So instead of thinking that I am reducing weight or I am walking or running or doing exercise for reducing weight, start thinking I am doing it for ensuring happiness or good future for my children. So connect it, although थोड़ा लॉन्ग वाइडेंस लगता है, बट अगर आप ये कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेंगे, जो आपका गोल है विद सम पर्पस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, देन यू विल फाइंड कि जो आपका जोश है, आपका मोटिवेशन लेवल है, वो हमेशा हाई रहता है. थर्ड, हैव अ टाइम लाइन फॉर द गोल विच यू हैव सेट एंड अ मेजरेबल क्राइटेरिया. Now for some things it is very easy to measure, very easy to quantify. जो अभी हमने पहले एग्जाम्पल लिया था वेट का, it's very easy to quantify how much you want to reduce. But there will be a lot of other things where it will be a little difficult, but not impossible. For example, some of you may have decided to improve your relationship with certain people around you. अभी तो कैसे मेजर करेंगे, कोई तरीका नहीं है, but we can do a subjective assessment. जैसे कि हम लोग कभी रेस्टोरेंट के बारे में फीडबैक देते हैं, या कोई वी बाय समथिंग ऑनलाइन एंड वी गिव अ रिव्यू में फीडबैक देते हैं. सिमिलरली ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, असेस योर सेल्फ, वेयर इज़ योर रिलेशनशिप राइट नाउ. अगर अच्छी नहीं है तो आई एम श्योर इट विल बी समवेयर बिटवीन 3 and 5. तो राइट डाउन दैट कि करेंटली आई एम हेयर एंड वेयर डू आई वॉन्ट टू गो. साथ साथ इसके ये भी लिख लें कि वॉट आर द फैक्टर्स वाई यू फील that it is currently at the level at which it is, and also write down some indicators, some factors which will tell you that अब relationship अच्छी हो गई है. कि अच्छी relationship का क्या criteria, कुछ तो होंगे आपके दिमाग में कि यार ऐसा होता है, इसका मतलब मेरी relationship अच्छी है. So do this exercise right now. It will help you to track yourself and of course know whether you have reached there or not. और टाइमलाइन जैसे मैंने कहा वो तो होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर टाइमलाइन नहीं है तो अनएंडिंग सा गोल हो जाता है.
Fourth, break down this long-term goal into a short-term goal. For example, अगर आपने किसी चीज़ को पूरा करने के लिए 6 महीने का टारगेट रखा है, तो ब्रेक इट डाउन टू से मंथली टारगेट, और जिसे हम बोलते हैं माइलस्टोन्स. माइलस्टोन्स का बेनिफिट क्या होता है? एक तो आपको रिव्यू करना आसान हो जाता है, सो यू कैन ट्रैक योर प्रोग्रेस, हाउ यू आर गोइंग. दूसरा, मोर इम्पॉर्टेंट, एवरी टाइम यू रीच द माइलस्टोन यू विल हैव अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन. यार हाँ, इतना तो हो गया. नॉट ओनली दैट, जो आपका मोटिवेशन लेवल है वो हाई हो जाता है कि यार चलो इतना तो हो गया, मुझे खाली यहाँ तक ही जाना है. फिफ्थ, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ एक्शनेबल स्टेप्स, और व्हाट आई विल कॉल एन एक्शन प्लान, कि आप क्या क्या स्टेप्स लेंगे टू अचीव योर गोल. दिस एक्शन प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप एक्शन से नहीं करेंगे, कुछ स्टेप्स नहीं लेंगे, तो वो गोल नहीं अचीव होगा. And so instead of just reviewing the goal or the broken down short-term goals, you can also review the action plans. Rather, you should definitely review the action plans, because that is where the real solution lies. Last but not the least, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब भी कोई गोल रखते हैं और ख़ास तौर से थोड़ा एम्बिशियस सा गोल होता है, तो हम लोगों को, जो हमारे चारों तरफ लोग हैं, उनसे शेयर नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि हमारा एक फियर होता है माइंड में कि यार अगर नहीं हुआ तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, पीपल विल रिडिक्यूल अस एंड सो ऑन. अब सवाल यह है कि यू आर ऑलरेडी स्टार्टिंग विद ए नेगेटिव माइंडसेट, कि आप पहले ही सोच के चल रहे हैं कि आपका गोल नहीं होगा. सो माय सजेशन इज जस्ट टू ऑपोजिट. स्टार्ट विद अ पॉजिटिव माइंडसेट कि गोल तो होने ही वाला है, तो व्हाई नॉट शेयर इट विद एवरीबडी अराउंड मी. उसके कई बेनिफिट्स मिलेंगे. पहला, जो आपके वेल विशर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स, हो सकता है वो आपको कुछ गाइडेंस भी दे दें कि कैसे कर सकते हैं, या बीच बीच में आपको थोड़ा मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं, आपका जोश बढ़ा सकते हैं, टू इंश्योर दैट यू आर ऑन ट्रैक टू अचीव योर गोल. ऑन दी अदर हैंड, वो जो मैंने कहा कि आप लोगों को बताएं, उसमें साथ साथ उनको भी बताएं, एक दो लोगों को जो ऐसे हैं जो आपका मजाक ज़रूर उड़ाएंगे अगर नहीं हुआ. अब उसका क्या बेनिफिट होगा? ये डर से कि वो आपका मजाक नहीं उड़ाएं, वो आपको रिडिक्यूल नहीं करें, विल पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू टू इंश्योर दैट यू एक्चुअली अचीव द गोल विच यू हैव सेट फॉर योरसेल्फ. तो ये सारे फैक्टर आपको पुश करेंगे टू अचीव योर गोल. सो फ्रेंड्स, टू कंक्लूड, follow this 6 steps so that you can fulfill your new year resolution or achieve the goal that you have set for yourself. 1, limit the number to 1 or 2. Second, identify the purpose, why you are doing it. Third, have a timeline and a measurable criteria. 4, break the long-term goal into short-term goal or milestones. 5th, prepare an action plan. And 6th, share your goal with people around you, including those who are likely to ridicule you on non-achievement. I'm sure this will help you to achieve your goals and be happier in life. With this, we come to the end of this episode. फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड चीयर्स.